Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord. We seek your presence this morning. We pray that your presence will barge into our hearts in a powerful way. Hallelujah. We surrender a soul. We surrender a mind. We surrender our whole being to your kingship, Lord Jesus. Hallelujah. Shalom Alachim, Brother Prabdeep. Hallelujah. Shalom, shalom, Sister Anju. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hala rasa katana, hedele rebana. Hedele rekene shandala, khaira katana zara gadala helia. Hebedele hala hetene rezagada rasa katene. Blessed be your name, King of glory. Bless you. Shalom, Richa ji. Shalom. Hallelujah. Darshan ji, Amit, Sam, Jai Masih ki. Brother Raman Khan, the Lord bless you richly. Manjeet Masih. Babu from Middle East, the Lord bless you. Davinder Singh ji. Darshan Singh ji from Jalandhar. Hallelujah. Hallelujah. What a privilege and honor to gather around the throne of grace and mercy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Indeed, glory to God in the highest. Hallelujah. Hallelujah. मेरे संग मिल के गाएं. ओ खतरे दे टोए ते खोबे आँचों है मैनू कढ़ के ले आया बाहर. ओ खतरे दे टोए ते खो है मैनू कढ़ के ले आया बाहर. चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बख्श कदमा नू उस्तबारी. मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी. हालेलुया. हालेलुया. मेरे साथ गाएं. रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं. रूआ गाइए. रुआ रुआ. बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से. बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से. रुआ 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 रुआ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, King of glory. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु खोले कुछ समय परमेश्वर की स्तुति करें. हालेलुया. उसके वचन में हम जाने से पहले हालेलुया परमेश्वर की स्तुति करें. हालेलुया. धन्यवाद 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 हो.
धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्रभु, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। हालेलुया। Lord, we commend this fellowship at the foot of the cross. Lord, I plead the blood of Yahushua HaMashiach, precious blood of Yahushua HaMashiach over everyone that has logged in and those who will still log in. I plead the blood of Jesus. Lord, this is for your glory. This is for your honor. This is only to exalt you and lift you up. Lord, this is only for our spiritual growth and edification and praying for one another. Hallelujah. Exalting your kingdom, Lord God. Building your kingdom, equipping your saints, building up your sons and daughters, Father God, bringing them to the perfection of the image and the similitude and the likeness of the glory of Nazareth. Hallelujah. Pour out your presence. Pour out your तेरे लहू की जय। हालेलुया। अपने वचन को द्वारा खोलिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उससे पहले मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं। टुडे वी विल बी टॉकिंग ऑन अ वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट. In fact, everything that we've been talking is deeply profound and profoundly deep. तो आज मैं आपको पहले एक वचन देना चाहता हूँ, 2 तिमोथियस 3 अध्याय का 16 वचन। अपनी बाइबल खोलें, 2 तिमोथियस 3 अध्याय का 16 वचन मैं पढ़ता हूँ। ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, for instruction in righteousness. Then verse number 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. अब ध्यान से सुनिएगा मुझे। बाइबल में लिखा है यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला तैयार किया। मैंने आपको बताया 7-fold टीचिंग में, वहाँ पे हमने पढ़ा बेरेशित 12 एलोहीम, 12 वर्ड बार बार जेनेसिस के 3 चैप्टर में, पर्टिकुलरली इन चैप्टर नंबर 1 में आता है। 12 का मतलब बनाना। जब परमेश्वर बनाता है उसे 12 कहते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया ही डिड 12, लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया ही डिड 12 एंड ही ऑल्सो डिड यत्सार। वहाँ पे 2 वर्ड हैं इंग्लिश में। वहाँ पे लिखा गॉड क्रिएटेड द मैन एंड गॉड फॉर्म्ड द मैन। 12 भी किया और यत्सार भी किया। परमेश्वर खुद इन्वॉल्व हुआ एडम को बनाने में। और मिट्टी का जब पुतला उसने बनाया, आपको मालूम उसने क्या किया? ही ब्लू हिज ब्रेथ इनटू द नॉसल्स, और यहाँ से होके वो परमेश्वर का जो श्वास था किधर चला गया? उस मिट्टी के पुतले के लंग्स में गया। और वो जो लंग्स मिट्टी के थे उनके अंदर जीवन आ गया। आपको मालूम आदम ने जो सांस लिया वो उसे किसने दिया? उसके सृजनहार यहोवा ने दिया। और वो जो मिट्टी का दिल था उसने धड़कना शुरू कर दिया। मिट्टी की आंखें थीं, ऐसे उसने आंखें खोली और अपने सृष्टा को देखा। एडम यूज्ड टू सी जीसस, एडम यूज्ड टू हैव फेलोशिप विद जीसस, जब तक वो पाप में नहीं गिरा। और जब वो पाप में गिर गया, आपको मालूम झाड़ियों के पीछे बैठा आदम, जब यीशु मसीह आवाज़ लगाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं आदम तू कहाँ है? तो वो झाड़ियों के पीछे से क्या कहता है? आई वॉइस एंड आई वॉज अफ्रेड, मैं तेरी आवाज़ सुन के डर गया था। अब उसे परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, केवल उसकी आवाज़ सुनती है। आँखें थी उसके पास नहीं की, और वो जो शरीर था रोशनी का, उसकी स्पिरिट बीइंग उसके बाहर था, मटेरियल बीइंग उसके अंदर था। स्पिरिट बीइंग वेंट इनसाइड, स्पिरिट लाइफ shrunk and entered inside, and he just remained a physical being. And now he lost the capacity to see God. He can only hear him. आपको मालूम परमेश्वर ने जब अपना सांस डाला
उसके लिए हिब्रू वर्ड है निशेमा खयम। खयम का मतलब होता है जीवन, और जब परमेश्वर जीवन बोलता है, खयम इज़ अ प्लूरल वर्ड। इन हिब्रू देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर लाइफ, लाइफ इज़ ऑलवेज प्लूरल। तो परमेश्वर ने वो श्वास डाला निशेमा खयम और जीवन आ गया। आपको मालूम पॉल क्या लिख रहा है यहाँ पे? 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में क्या लिख रहा है पॉल? ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल ग्रीक वर्ड क्या है? पॉल कहता है ऑल स्क्रिप्चर। बाय द वे, जिसे पॉल ऑल स्क्रिप्चर कह रहा है वो ओल्ड टेस्टामेंट है। बहुत सारे अज्ञानी सेवक लोग कहते हैं पुराना नियम ख़त्म हो गया, अब तो नए कवनेंट में हैं हम। वो बिल्कुल अज्ञानी हैं, और अगर ये गुस्ताखी ना हो तो मैं कहूँगा वो मूर्ख भी हैं। क्योंकि पॉल जब लिख रहा है ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट, पॉल इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू टेस्टामेंट। भाई और बहनों, न्यू टेस्टामेंट तो अभी तक लिखा भी नहीं गया। पॉल इज़ टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट। पलूस तिमोथियस के लिए क्या लिखता है? पॉल तिमोथियस के लिए लिखता है, तेरी माता गॉडली, तेरी नानी गॉडली है लुइस, उन्होंने जो तुझे कलाम सिखाया है वो तुझे इसमें मजबूत करेगा। वो कौन सा कलाम? ये ओल्ड टेस्टामेंट इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारा कलाम परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा लिखा है। पंजाबी हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है इंस्पिरेशन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रीक, पॉल कहता है ऑल स्क्रिप्चर इज थियोस नस्टस। थियोस ग्रीक में परमेश्वर को कहते हैं। हिब्रू लोगों पे यहोवा ने अपना सच्चा प्रकाश प्रकट किया। यहोवा का सच्चा प्रकाश है कि उसका नाम है यहुआ, याहवे, हाइया अशर हाइया। लेकिन ग्रीक फिलोसोफर उस परमेश्वर को थियोस के नाम से जानते हैं, जहां से आपका अंग्रेजी का शब्द निकलता है। थियोलॉजी समझते हैं आप क्या होता है? थियोस प्लस लॉजिक। परमेश्वर को लॉजिक से जानना, इधर से जान सकते हैं आप लॉजिक से उसे। परमेश्वर को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक वो अपने आप को आप पे प्रकट ना करे। तो पॉल लिख रहा है ऑल स्क्रिप्चर इज थियस नस्टस। थियस नस्टस क्या होता है आपको मालूम? परमेश्वर की सांस है। जैसे यहोवा ने अपनी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई एम हैविंग लिटिल हार्ड टाइम connecting here. I'm moving to another place. Hallelujah. Please pardon me. Disconnect हो रहा है. Hallelujah. Here the signal is little better. Hallelujah. Thank you Jesus. So मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉल तिमोथी को लिखता है सारा स्क्रिप्चर is the breath of God. Theos Nastus. God blew his breath. Hallelujah. जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का वचन खुलता है, तो यहोवा परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी श्वास, ही ब्लोज हिज ब्रेथ। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम रेवलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको रेवलेशन की 5 सील तक पहले स्टडी कराया। वी विल टर्न टू रेवलेशन वन मोर टाइम। उसका 6 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर नंबर 6। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर नंबर 6, और मैं पढ़ूंगा रेवलेशन चैप्टर नंबर 6 एंड हालेलुया, हालेलुया। सम पीपल आर joining us from the US. Welcome. Helen de la Quintana. The Lord bless you. I understand you are logging in from California. You are very warmly welcome. The Lord bless you. I deeply apologize because majority of the time I won't be talking in English. I would be speaking in Hindi because most of the people here may not have any clue if I continue to talk in English. Hallelujah. But I'll be giving certain punchlines.
सो आई विल टेक यू टू बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्या में से उसके 6 अध्याय और उसके मैं 12 वचन को पढ़ूंगा आपके लिए। प्रकाशित वाक्या 6 का 12। एंड आई बिहेल्ड व्हेन ही हैड ओपन द 6th सील, एंड लो देयर वॉज ए ग्रेट अर्थक्वेक, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. 14th verse, and the heavens departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Hallelujah. This is the opening up of the 6th seal. So कई बाइबल स्कॉलर बिलीव ये करते हैं कि जब 6th सील खुलती है दैट इज द रैप्चर। ऑफ कोर्स आई डोंट एग्री विद दैट। ये भी प्री ट्रिब है। प्री ट्रिब बहुत सारे लोग यूएस में मिड ट्रिब हैं। मिड ट्रिब समझते हैं आप? 7 साल का जो शैतान का राज्य है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 1260 डेज, 1260 डेज। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो मिड ट्रिब का मतलब है जब 1260 डेज ट्रिबुलेशन के पूरे होंगे तब चर्च उठाई जाएगी। वो जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है दैट्स कॉल्ड प्री रॉथ रैप्चर, प्री रॉथ रैप्चर। मिड ट्रिब बोलते हैं उसे। प्री ट्रिब वो हैं जो मानते हैं हम लोग कि कलीसिया ट्रिबुलेशन में जाने से पहले उठाई जाएगी। फिर कुछ लोग हैं पोस्ट ट्रिब, वो ये मानते हैं कि कलीसिया 7 साल के सताव में से होकर गुजरेगी। कुछ ऐसी भी डॉक्ट्रिन्स हैं जो मानती हैं कि रैप्चर है ही नहीं। यू डाई एंड यू मीट गॉड, आप जब मरोगे तब परमेश्वर से मिलोगे। तो यहाँ पे एक मासिव अर्थक्वेक है। मैं आपको एक टीचिंग दूंगा बाद में कि जब नोहा का फ्लड आया, नोहा के फ्लड के आने के समय पृथ्वी के नीचे जो लिखा है ना, द फाउंडेशन ऑफ द डीप वर ब्रोकन। आई स्टडीड सो मेनी जियोलॉजिकल बुक्स, आई डिड so much online research also. Many geologists believe there was one prominent Christian scientist जिसने ये डिस्कवर किया, अराउंड द वर्ल्ड उसने ट्रैवल किया, बिकॉज ही वॉज ए क्रिश्चियन, सो हिज फाइंडिंग्स वर नॉट पुट इन टू हाईलाइट वेरी मच। उसने क्या ढूंढा कि नूह के फ्लड के बाद पृथ्वी अपने एक्सेस पे 29.5 डिग्री पे टिल्ट हुई है। पृथ्वी की जो रोटेशन है 29.5 डिग्री पे टिल्ट होके पृथ्वी ऐसे घूम रही है। खैर, यहाँ पे ये लिख रहा है बंदा मासिव अर्थक्वेक, और जो बिलीव करते हैं कि ये भी प्री ट्रिब है ये भी, तो वो ये कहते हैं कि ये, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो पहली 5 सील्स हैं वो खुल चुकी हैं। कुछ लोगों का ये विश्वास है। फर्स्ट 5 सील्स आर ऑलरेडी ओपन, ये भी एक डॉक्ट्रिन है। लेकिन वो भी प्री ट्रिब लोग हैं, वो भी सताव से पहले वो मानते हैं कि जो 4 हॉर्सेज हैं प्रकाशित वाक्य के, वो डैनियल के समय निकल गए, जब डैनियल प्रोफेसी कर रहा है। दे प्रिटिज्म है वो, उसकी कई कॉम्प्लिकेशंस है, खैर उसमें नहीं मैं जाना चाहता। तो यहाँ पे रेजरेक्शन के विषय में लिखा है, एक मासिव रेजरेक्शन है। आप वचन को देखें, जहाँ भी रेजरेक्शन हुई है अर्थक्वेक उसके साथ कनेक्टेड है, रेजरेक्शन के साथ। हम अगर 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में पहले कलीसिया की मिस्ट्री की बात करता है। कैसे कलीसिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी गई, कैसे कलीसिया पवित्र आत्मा और कलाम के द्वारा बनाई गई। फिर पूरी डॉक्ट्रिन की बात करता करता 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में इवेंचुअली पॉल पहुंचता है रेजरेक्शन पे, कि अगर रेजरेक्शन नहीं तो क्रिश्चियनिटी भी दुनिया के बाकी पंथों की तरह है। आपको मालूम सबसे ब्यूटीफुल पावरफुल चीज़ बाइबल में क्या है? इट्स कॉल्ड रेजरेक्शन। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं मार्था से, जब वो यीशु मसीह को बताती है कि रेजरेक्शन के दिन मेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह उसके सामने खड़े, गॉड इन ह्यूमन बॉडी। यीशु मसीह उसे कहते हैं, आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ।
Jesus didn't say, I am the death and life. Jesus said, I am the resurrection and life. आपको मालूम, परमेश्वर ने एडम को अदन के बाग में रखा. एडम could have lived forever. Adam could have chosen to eat from the tree of life and would have never died. परमेश्वर ने, हालेलुया. कोई बोल रहे हैं कि नेटवर्क इश्यू है. आप लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? प्लीज़ मुझे बताइए. कैन यू हियर मी एंड सी मी? हालेलुया. प्लीज़ पंच अ मैसेज इफ़ यू ऑल कैन सी मी एंड हियर मी. हालेलुया. आपको सुनाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? सेंड मी अ मैसेज प्लीज़. यस. हालेलुया. हालेलुया. आपको मालूम, परमेश्वर ने मौत नहीं बनाई. गॉड क्रिएटेड लाइफ. परमेश्वर वही चीज़ बनाता है जो उसकी ज़ात से मेल खाती है. गॉड इज़ लाइफ. गॉड इज़ ख़ायम. गॉड इज़ इटर्नल लाइफ. इन ग्रीक ही इज़ ज़ोए काइंड लाइफ. Life that never began, the life that shall never end. He is eternal life. He creates everything out of His own existence. Out of His own virtue He creates. Since God is light, He creates light. Since God is life, He creates life. तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, the day you eat from the tree of the knowledge of evil and good, thou shalt surely die. The Lord said, if you disobey me, if you break my commandment, then you will die. Death will be a byproduct. तुम मर जाओगे जब तुम मेरी आज्ञा तोड़ोगे. प्रभु ने मौत नहीं बनाई, लेकिन प्रभु ने ये बताया कि मेरी आज्ञा तोड़ने से मृत्यु उत्पन्न होगी. हालेलुया. यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ. मनुष्य के आज्ञा तोड़ने के कारण मृत्यु जगत में आई. हालेलुया. यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन हूँ और मैं रेजरेक्शन हूँ. हालेलुया. यहाँ बताता है परमेश्वर का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 52 वचन में जब आप पढ़ेंगे, व्हेन जीसस डाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी एंड जीसस वाज गोइंग इन द अंडरवर्ल्ड. बहुत अद्भुत चीज़ें हैं 27 चैप्टर में. 5 अलौकिक चीज़ें हुई. व्हेन ग्लोरियस जीसस वाज गोइंग डाउन. आपको मालूम, 27 चैप्टर मत्ती की इंजील उसके 52 वचन में लिखा है, कई धर्मी लोगों की बॉडीज रेजरेक्ट हो गई. कई धर्मी लोग, उनकी बॉडीज रेजरेक्ट हो गई. हालेलुया. रेजरेक्शन एक बहुत ग्लोरियस, खूबसूरत बात है वचन के अंदर. जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जैसे यीशु मसीह के पास एक इनकरप्टेबल ग्लोरियस बॉडी है, रोशनी की बॉडी है, वैसी बॉडी आपको और मुझे मिलेगी. और आपको मालूम वचन क्या बताता है? वचन बताता है, गॉड विल मेक हेवन एंड द अर्थ न्यू. पृथ्वी और आकाश नए कर दिए जाएंगे और हम यीशु मसीह के साथ आएंगे. 1000 साल राज्य करेंगे. ये पृथ्वी, ये आकाश नया कर दिया जाएगा. कहीं जा नहीं रहा ये. अगर आपने ऐसा विचार रखा है कि आप हेवन में चले गए, आपके इधर से 2 पंख निकल आए, आप उड़ते हुए, हार्प बजाते हुए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करोगे, तो ये भूल जाइए, क्योंकि बाइबल ऐसा व्यू नहीं देती. बाइबल बताती है हम जीसस के साथ वी आर गोइंग टू रेन एंड रूल द यूनिवर्स. वी विल बी co-regents. We will be co-chancellors with Jesus Christ. He is training and equipping us to reign and rule. Hallelujah. Hallelujah. और हमें मिलेंगी ग्लोरीफाइड बॉडीज़. वो ग्लोरीफाइड बॉडीज़ में हम यहाँ आएंगे. हालेलुया. मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ नॉर्दर्न किंगडम, इज़राइल की नॉर्दर्न किंगडम, जिसे हम इज़राइल बोलते हैं. जो सदर्न किंगडम है उसे जूडा कहा जाता था, जो नॉर्दर्न किंगडम है उसे इज़राइल कहा जाता था. तो इज़राइल में मैंने पहले भी आपको एक मैसेज में बताया कि एक औरत आई जिसका नाम था इज़बेल, जिसके विषय में खुद प्रभु यीशु मसीह
प्रकाशित वाक्य में बताते हैं। और उस औरत ने वो सिदोनी थी, फोनीशियन, और उसका जो पिता था इथबाल, वो बाल देवता का पुजारी था। जाइडोनियन लोग बहुत विचक्राफ्ट, सॉर्सरी, अकल्टिज्म और हर तरह की सेक्सुअल परवर्जन में बिलीव करते थे। बहुत बदकारी से के भरे अनैतिक काम किया करते थे। और जाइडोनियन जो लोग थे, इनका मेन गॉड जो था एल था, जिसे बाल भी कहते थे। और अष्टराटे, जहाँ से अस्थोरेत या डायाना देवी, अलग अलग पैंथियन में उसके अलग अलग नाम हैं। अष्टराटे इनकी देवी थी और मलकात देवता था। 3 देवते थे इन लोगों के जिनकी ये पूजा करते थे। अष्टराते के विषय में जर्मिया अपनी पुस्तक 7 अध्याय के 18 वचन में बात करता है। जर्मिया 44 चैप्टर की 25 वर्स में बात करता है। इसराइली लोग भी अष्टराटे की पूजा करते थे, जिसे क्वीन ऑफ हेवन कहने लगे वो बाद में। वही क्वीन ऑफ हेवन इधर आ गई है वेटिकन में, जिसने ऐसे एक बेबी लिया हुआ है, जिसकी जूइश लोग भी उपासना करते थे। और ये तीनों ही देवते टायर के पैंथियन में हैं। सूर और सैदा जिसे कहा गया 14 अध्याय यशाया नबी की पुस्तक में। आपको मालूम, इज़बेल ने पूरे इसराइल को यहोवा से बेमुख कर दिया और ऊंचे स्थानों पे बाल देवता की मूर्तियां बनाई। और इसने पॉलिटिकली, इसका पति बहुत दुष्ट बंदा था, मैंने कल आपको वचन में से बताया था। इन्होंने पूरे इसराइल के स्पिरिचुअल क्लाइमेट को चेंज कर दिया। पॉलिटिकली बाल देवता को इंस्टॉल किया सियासी तौर पे। और इस औरत ने बहुत सारे बाल देवता के नबियों को रखा और उनको पेमेंट मिलती थी, सरकारी खजाने से सैलरी मिलती थी, और बाल की पूजा के लिए पूरे इसराइल को प्रेरित किया। और आपको मालूम, ये जो बाल है, बाल देवता, ये वॉर ऑफ गॉड है, समझ रहे? और इसे गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है, बैल को। और ये जो बाल के पुजारी थे, ये आसमान से आग बुलाया करते थे। इसराइल यहोवा को छोड़ के बाल के पीछे यूं नहीं गया, क्योंकि ये चमत्कार करते थे, चिन्ह करते थे, जिसे देख के इसराइल पथभ्रष्ट हुआ और यहोवा को छोड़ के बाल के पीछे चला गया। लेकिन यहोवा ने एक बंदे को खड़ा किया, एलीशा तिशबी को। और आपको मालूम उसने क्या किया? उसने बाल देवता को चैलेंज किया। हालेलुया। ये स्टॉर्म गॉड है। कौन? बाल। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो बाल हदाद, बाल हमोन, इसके अलग अलग नाम हैं। ये स्टॉर्म गॉड है। अभी इसके विषय में और देखेंगे हम। तो एलिया ने उसे चैलेंज किया और बाल के नबियों को। और आप देखते हैं उस पहाड़ के ऊपर बाल के नबी इकट्ठे हुए और एलिया ने उनसे बोला कि अब आग बुलाओ। आपको मालूम, तब तक शैतान आग बुलाता रहेगा जब तक एक सच्चा नबी खड़ा नहीं होगा। तब तक झूठे नबी लोगों को गुमराह करेंगे जब तक यहोवा का एक सच्चा नबी खड़ा नहीं होगा। और एलिया ने चैलेंज इसलिए किया क्योंकि वो आग बुलाते थे। तो उन्होंने जगवेदी बनाई और सुबह से लेकर शाम तक बुलाते रहे। और एलिया उनका सरकास्टिकली मजाक उड़ाता है, उन्हें कहता है कहीं सो ना गया हो, कहीं काम पे ना गया हो, और बुलाओ अपने देवता को। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब सांझ होने लगी तो एलिया ने उसी जगवेदी को रिपेयर किया और उसने काम को इतना डिफ़िकल्ट किया कि चारों ओर गहरा खड्डा खुदवा दिया और उसे पानी से भरवा दिया। और उसने सच्चे और जीवित परमेश्वर यहोवा का नाम पुकारा, जो करूबों के ऊपर विराजमान है, जो बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी में से निकाल के लाया, जिसने लाल समुद्र को फाड़ा, जिसने ओग और बशान के राजाओं का न्याय किया, जिसने स्वर्ग को खोल के मन्ना की वर्षा की, जिसने क्वेल्स उन्हें खाने के लिए दिए, जिसने चट्टान को खोल के पानी पिलाया, जो जलाली बादल का साया बन के उतरा, जो आग का खंबा बन के आया, जिसने हालेलुया अद्भुत काम किए, अद्भुत महाप्रतापी काम किए, जिसने आकाश को तंबू की तरह ताना है, असंख्य तारों से श्रृंगार किया है, जिसके आदेश से सूर्य निकलता है जैसे दूल्हा मंडप में से एक शोर से निकल के दूसरी शोर की और जाके
अपनी यात्रा को पूरी करता है, जो चारों कूटों की हवा को अपनी मुट्ठी में बंद करता है, जो समुद्रों के पानियों को ऐसे अपने हाथ में उठा लेता है, जिसके प्रकोप के आगे पहाड़ भाग जाते हैं, जिसके क्रोध के आगे पहाड़ पिघल के लावा हो जाते हैं, जो पवन को पंख बना के उड़ता है, जो परमेश्वर अगम्य ज्योतों में वास करता है, जो नूर के अंदर रहता है, जो दयालु और कृपालु है, जो अपनी वाचा को पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण करता है, लेकिन जो वो परमेश्वर दुष्ट को कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। जो युद्ध में विजयी हुआ है, जिसने फिरौन और उसके रथों को महासमुंदर में गिरा दिया है। आपको मालूम, ये यहोवा, इसको लोग हालेलुया युद्ध का परमेश्वर कहते हैं। ही इज़ मैन ऑफ वॉर, ही वेजेस वॉर। बाइबल पढ़ के देखें, बाइबल के अंदर जबूसी लोगों के, बाइबल के अंदर गिरगिशाइट लोगों के, कनानी लोगों के, बाइबल के अंदर मिस्री लोगों के, यूनानी लोगों के, बाइबल के अंदर अमालेकी लोगों के, इनके देवता हैं। ये हाइब्रिड हैं, नफलीम हैं, ये फॉलन एंजल हैं जो नीचे गिरे। ये देवी देवताओं के पैंथियन बन के अलग अलग कल्चर संस्कृतियों में ये देवता लोग सिंहासन पे बैठे हैं। यहोवा इनसे टकराता है। बाइबल पढ़े पुराना नियम, यहोवा का रूह इनके साथ टकराता है। हालेलुया। ये स्टॉर्म गॉड है, थंडर गॉड। कौन? बाल हदाद। यहोवा का रूह अपने दास एलिया के द्वारा टकराता है, और खुदा का एक बंदा उस आग को, वो आग आती थी सचमुच, झूठ मत समझिए, लेकिन एक बंदा खड़ा हो गया जिसके ऊपर यहोवा का रूह है। वो आग नहीं आई, उसने इम्पॉसिबल कर दिया सिचुएशन को, और फिर उसने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को करने में सिर्फ 40 या 45 सेकंड लगते हैं जो एलिया ने की, और तीसरे स्वर्ग से आग आई। ये आग बुलाते थे दूसरे स्वर्ग से, जहाँ प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और शैतानी शक्तियों का वास है। लेकिन ये आग कहाँ से आई? दूसरी डोमिनियन को, जहाँ पे ये चीज़ें बैठी हैं, इनके राज्य को चीर के यहोवा के सिंहासन से आग आई और पानी को चट कर लिया, पत्थरों को चट कर लिया। पूरा इस्राएल घुटनों पे गिर गया और कहने लगा यहोवा ही परमेश्वर है, याहवे इज़ गॉड, याहवे इज़ गॉड। और बाल के पुजारियों को घात कर दिया गया। आपको मालूम उसके बाद क्या हुआ? मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कहानी को। अद्भुत काम किए एलिया के द्वारा। एलिया एक ऐसा कदावर नबी है। कई लोग ना उसकी नकल करते हैं कि जैसे एलिया को पापा कहता था ना एलीशा, वैसे हमें भी राइट मिल गया पापा कहने का। वो ये तो नहीं जानते कि एलिया कितना कदावर नबी है खुदा का, कितना अजीम संत है। एलिया एक ऐसा नबी है बाइबल में जो अहाब राजा से कहता है, जा मैं तुझे कहता हूँ बारिश नहीं पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू माई वर्ड आई एम टेलिंग यू गो देयर शैल बी नो रेन। इस लेवल पे पहुंचने के लिए कोई बातचीत चाहिए भैया। एकदम से थोड़ा एलिया के जूते में अपना पाँव घुसा लोगे आप और कहोगे मुझे पापा कहो क्योंकि मेरे को राइट है, बाकियों के पास नहीं है। और बाय द वे आपको ये भी बताऊं, पापा का मतलब क्या होता है? एलीशा अपने स्वामी एलिया को क्यों कहता है पापा, फादर क्यों कहता है? सुनिए ध्यान से, क्या मतलब है उसका फादर कहने का? वचन में ये लिखा है, पढ़ें ध्यान से। वचन में एलीशा के विषय में ये लिखा है, एलीशा जो अपने स्वामी एलिया के हाथ पे पानी डालता था, उसे हिब्रू में कहा जाता सन ऑफ द कप। ऐसे पानी डालने का काम करता, नौकर है उसका, अपने स्वामी एलिया की सेवा करता है, सन ऑफ द कप है। तो वो उसका सन ऑफ द कप है, लेकिन एलीशा के दिल में क्या इच्छा है? एलीशा के दिल में इच्छा है कि मुझे तो अपना बेटा बना। हालेलुया। मुझे अपना बेटा बना और मुझे अपना पहलौठा बेटा बना। इसलिए वो कहता है उसे, माई फादर द चैरिटियर ऑफ यशरेल। जब वो उसे कहता है कि एलिया उससे पूछता है तुझे क्या चाहिए, 4 इम्तिहान होते हैं उसके, चारों में से वो गुजर जाता है। फिर किसी से मैं आपको बताऊंगा वो 4 इम्तिहान कौन से थे जो एलिया ने एलीशा के लिए। लेकिन जब वो सारे इम्तिहान पास करता है
तो एलिया उससे पूछता है तुझे क्या चाहिए। जब वो यर्दन के दरिया के सेंटर में पहुंच चुके हैं, यर्दन फट चुका है और एलिया और एलीशा पानी दीवार बन के खड़ा है, उसमें से गुजर रहे हैं। वो कहता है जो आत्मा तेरे ऊपर है उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। आप सोचते होंगे कि एलीशा ये चाह रहा था कि जितने मिरेकल, जितने चमत्कार, जितने मौजे एलिया ने किए मैं उनसे डबल करूं ताकि मेरा दुगना नाम हो जाए, मुझे अपने स्वामी एलिया से दुगनी शोहरत मिले, मुझे अपने स्वामी एलिया से दुगना फेम मिले, ज़्यादा लोग मुझे जाने। ये ख्वाहिश कभी नहीं थी एलीशा की। आपको मालूम एलीशा क्यों कहता है मुझे दुगना हिस्सा दे? मतलब समझते हैं आप क्या होता है? पढ़िए व्यवस्था की 5 पुस्तकें जो मूसा ने लिखी हैं, पढ़ो उन्हें गहराई से, फिर समझ लगेगी। जब कोई व्यक्ति, कोई पुत्र बन के दुगना हिस्सा मांगता है, उसका मतलब ये है वो ये कह रहा है कि मुझे अपना पहलौठा पुत्र बना ले, क्योंकि डबल पोर्शन पहलौठे को मिलता है। एलीशा एलिया से अभिषेक इसलिए नहीं मांग रहा कि बड़ी सेवकाई स्थापित कर ले, एलिया से 2 गुना बढ़िया से बड़ी सेवकाई कर ले और एलिया से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हो जाए, इसलिए नहीं कह रहा। एलीशा एलिया को इसलिए डबल पोर्शन मांग रहा है क्योंकि दुगना हिस्सा पहलौठे को दिया जाता है। वो अपने उसको बाप बना के कह रहा है मुझे डबल पोर्शन दे। तो अगर आप लोगों को बोलते हो कि मुझे पापा बोलो, और लोग आपको पापा बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं पत्नी को आपकी, तो डबल पोर्शन दे सकते हो आप? ऑथराइजेशन है आपके पास डबल पोर्शन देने की, दुगना हिस्सा। आपको मालूम प्रेरित पौलुस क्या लिखता है तीमुथियुस को? प्रेरित पौलुस कहता है जो औरतें तुझसे बड़ी हैं उन्हें माता जान, जो हम उम्र है उन्हें बहन जान, जो छोटी उन्हें बेटी जान। ये बहुत फूहड़ता की बात है कि एक 30-40 साल के बंदे को 80 साल की औरत आके पापा जी बोले, या 80 साल का बुजुर्ग पापा जी बोले। ये बाइबल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वचन में लिखा है एलिया जैसे कदावर बंदे ने क्या किया, उसने बाल हमोन को बांध दिया। और आपको मालूम जो आग ऊपर से आती है थंडर करती हुई, ये हथियार है बाल का। जो बाल देवता है उसका हथियार था ये। गॉड ऑफ थंडर है वो, गॉड ऑफ स्टॉर्म है, उसका हथियार है ये फायर। यहोवा उसी के हथियार से उसे मारता है। और लेकिन क्या होता है कि जो इज़ाबेल है वो एक बहुत खतरनाक रूह है। इज़ाबेल पूरे नॉर्दर्न किंगडम में इज़राइल की उसने कब्जा किया हुआ है, और एलिया उससे डर के एक गुफा में जाके छिप जाता है। पहला राजा 19 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे यहोवा का रूह आता है, उससे पूछता है प्रभु तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो प्रभु को क्या बताता है? प्रभु को बताता है मैं तेरी जलन से जल गया, मैं ही अकेला बचा हूँ, सारा इज़राइल पृथ्वभ्रष्ट हो गया, तेरे सब नबी मार दिए गए, कोई भी नहीं बचा। लेकिन एलिया ये नहीं जानता, एलिया नॉर्दर्न किंगडम में है इज़राइल में, एक नीचे सदर्न किंगडम है जहाँ पे टेम्पल भी है यहोवा का, मंदिर भी है, वहाँ पे भी यहोवा के नबी हैं, संत हैं। लेकिन एलिया सिर्फ नॉर्दर्न किंगडम की बात कर रहा है। तो प्रभु उसे बताता है कि अभी 7,000 ऐसे लोग जो मैंने छिपा के रखे हैं। यहोवा अपने बहुत पवित्र लोगों को छिपा के रखता है। हालेलुया। उनको प्रकट नहीं करता कईयों को, वो छिपे होते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु वहाँ पे प्रभु स्वयं यीशु मसीह हैं जो प्रकट होते हैं। वहाँ पे लिखा दी एंजल ऑफ द लॉर्ड। मैंने आपको बताया था ये एंजल ऑफ द लॉर्ड कौन है, उसके लिए हिब्रू वर्ड क्या है, अगर आपको याद होगा। तो ये एंजल उसे खाना खिलाता है और एलिया उस खाने की स्ट्रेंथ से क्या करता है? 40 दिन 40 रात चलता है। हालेलुया। और फिर एक गुफा में जाता है। लेकिन वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो वहाँ पे क्या होता है कि आग आती है। लेकिन वचन में लिखा है यहोवा आग में नहीं था। फिर अर्थक्वेक आता है। फिर लिखा यहोवा अर्थक्वेक में, भूकंप में भी नहीं था। फिर लिखा बड़ी तेज आंधी आती है। वचन में लिखा है यहोवा आंधी में भी नहीं था। फिर लिखा है एक बड़ी शांत आवाज़ आती है। कई बार बहुत ज़्यादा
चिल्लाना, शोर मचाना, कूदना, नाचना, कई बार लोग इसी को अभिषेक समझ लेते हैं कि बहुत उस मीटिंग में जाके हल्ला गुल्ला हुआ, शेकिंग हुई, बहुत पवित्र आत्मा उतरा जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जिस तरह चाहे उस तरह काम करे। आप पवित्र आत्मा के लिए पैटर्न मत बनाइए कि जी जोर जोर से चिल्लाएंगे, नाचेंगे तो ही पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा स्वामी है, मालिक है, वो अपने आप चुनता है उसे किस रीति से काम करना है। कभी वो आंधी बन के भी आ सकता है, कभी ओस बन के शबनम की तरह टपक सकता है, कभी अग्नि की तरह आ सकता है, कभी हथौड़े की मानिंद आ सकता है, कभी तेल की तरह आ सकता है। अलग अलग पवित्र आत्मा की हजूरी के प्रगटीकरण हैं। एलिया ने परमेश्वर के रूह के ये 3 जबरदस्त रूप देखे थे। ऐसी आंधी, वचन में आपको मालूम क्या लिखा वहाँ पे? वचन में वहाँ पे लिखा है, अगर हिब्रू में आप पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन अगर हिब्रू में पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है अ विंड दैट टोर द माउंटेन्स दैट रिप्ड द रॉक्स। वहाँ पे जो चट्टानें थीं उन चट्टानों को रेंड कर दिया, चीर दिया उस आंधी ने। ऐसी आंधी थी वो। हालेलुया। साधारण आंधी नहीं थी, चट्टानों को चीर के निकल गई आंधी। लेकिन यहोवा आंधी में नहीं था, यहोवा अर्थक्वेक में नहीं था, यहोवा फायर में नहीं था। एलिया फेमिलियर था परमेश्वर के इन रूपों को उसने देखा। कई बार जो फेमिलियरिटी होती है बहुत डेंजरस होती है। आप ओवर फेमिलियराइज मत होइए यीशु मसीह से, वो आपके जीवन से यहोवा के भय को निकाल के ले जाएगा। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग बहुत फेमिलियर हैं, ओवर फेमिलियर हैं, एंड दे हैव नो रियल फियर। कल मैंने आपको बताया रूहा खौफा, ये जो इसके आपको बताया था, ये सेंटर में होता है रूहा खौफा, यहोवा के डर का आत्मा। ये यीशु मसीह के रोम रोम में था। तो स्टिल स्मॉल वॉइस आई और एलिया ने सुनी और वो खड़ा हुआ, ही गर्ट हिज लॉइन्स, हालेलुया, और गुफा के आगे जाके खड़ा हो गया। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो यहाँ क्या कर रहा है? हालेलुया। आपको मालूम ये जो पूरी लैंग्वेज है फायर की, स्टॉर्म की, चट्टानों को फाड़ने वाली आंधी, फायर, अर्थक्वेक, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं स्टॉर्म गॉड की। ये एक वॉर चल रही है, इंटेंस वॉर। ये वॉर है, लड़ाई है यहोवा और बाल देवता के बीच में। ये कैओस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़िए जल्दी से जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय जल्दी से निकालिए। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1। हालेलुया। आप में से जो लोग पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा हिब्रू के लेक्सिकन एक्सेस करें, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। कुछ आपको ख़रीदने पड़ेंगे जो एक्सपेंसिव हैं और रियल ऑथेंटिक हैं, जिनसे आप पता लगाएं। जब मैं आपको वर्ड देता हूँ, बताता हूँ। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, मैं उसकी 2 वचन पढ़ूंगा आपके लिए। यहाँ पे लिखा है, पहला भी पढ़ देता हूँ। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। और दूसरे वचन में लिखा, एंड द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड एंड डार्कनेस वॉज अपॉन द फेस ऑफ द डीप एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वाटर्स। इसको अगर आप हिब्रू में पढ़ेंगे, मैं शाम को आपको इसकी हिब्रू टेक्स्ट दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सेकंड वर्स में लिखा, द अर्थ वॉज वॉइड एंड विदाउट फॉर्म। अगर आप हिब्रू टेक्स्ट में जाके ओरिजिनल पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, द अर्थ बिकेम और द अर्थ वॉज मेड वॉइड एंड विदाउट फॉर्म। परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं बनाता जो बिना, यहाँ पे क्या लिखा है, धरती बेडोल और सुनसान थी। परमेश्वर बेडोलपन और सुनसानपन कभी नहीं बनाता। ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट बताता है कि पृथ्वी बना दी गई, बन गई या बना दी गई, और हिब्रू वर्ड है टोहू वोहू, वॉइड एंड फॉर्मलेस, वॉइड एंड फॉर्मलेस। और फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है कि जो हमने वचन पढ़ा, टोहू वोहू, और
यहाँ पे लिखा एंड विदाउट फॉर्म एंड वॉइड, ये हिब्रू वर्ड है तोहू वहू। और फिर लिखा एंड डार्कनेस वॉज अपॉन द फेस ऑफ द डीप। तो डार्कनेस के लिए वर्ड है होसेक, हिब्रू वर्ड है होसेक। आपको मालूम ये कौन सी डार्कनेस है? ये ऐसी डार्कनेस है जो आपके डीएनए को पियर्स कर जाती है। ये आम डार्कनेस नहीं है, ये अंधेरा एक बदरू है, डेमोनिक एंटिटी है। ये अंधेरा इतना डार्क अंधेरा है, पताल का अंधेरा है ये। होसेक, जीवन नहीं है यहाँ। और ये ऐसा अंधेरा है कि आपको अपना वजूद पता नहीं लग रहा आप कहाँ हो, ऐसी डार्कनेस है। हिब्रू वर्ड है होसेक। और लिखा है, क्या लिखा है? डार्कनेस वॉज अपॉन द फेस ऑफ द डीप। होसेक कहाँ है? फेस ऑफ द डीप जो वर्ड है उसका हिब्रू वर्ड है पनेम। पनेम का मतलब चेहरा। होसेक किसी चीज के चेहरे के ऊपर खड़ा है। किसका चेहरा है? वो वर्ड है डीप। आपको मालूम ये हिब्रू वर्ड क्या है? ये हिब्रू वर्ड है टाहोम। टाहोम। अगर आप एंशंट मेसोपोटेमियन रिलीजन की, एंशंट मेसोपोटेमियन रिलीजन, उनके कल्चर और उनके पैंथियन की अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें तियामात नाम का एक देवता है। ये सुमेरियन टेक्स्ट में भी आपको मिलेगा। तियामात एक देवता है, वो सी मॉन्स्टर है, समुद्रों के अंदर है, सी मॉन्स्टर है। बाइबल के अंदर मैं आपको 2 रेफरेंस देना चाहता हूँ, पढ़ लीजिए जल्दी से। पहले पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए अयूब की किताब, उसका 41 अध्याय और पहला वचन पढ़िए। जोब, लोग बोल रहे हैं नो कनेक्शन। आपको सुनाई दे रहा है क्या? प्लीज़ बताइए मुझे, सुनाई दे रहा है? यस करके लिख दीजिए। प्लीज राइट यस इफ यू आर हियरिंग मी। हालेलुया, लिख दीजिए प्लीज, मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, यस लिखिए अगर आपको सुनाई दे रहा है। राइट, यस, आई वुड नो दैट यू आर हियरिंग मी। दूसरे लोग भी लिख दीजिए। ओके, पढ़िए। हालेलुया। अयूब की किताब, अयूब उसका 41 चैप्टर। मैं ये वर्सेस पढ़ूंगा नहीं, मैं चाहता हूँ आप पढ़िए। अयूब 41, 41, अयूब की किताब 41 अध्याय पढ़िएगा। मुझे हिंदी में आप लिखिए मैसेज में क्या नाम लिखा है यहाँ पे। अयूब 41 उसकी वर्स नंबर 1 इंग्लिश में लिखा है, कैंस दाउ ड्रॉ आउट लेवायथन विद एन हुक और इज टंग विद अ कॉर्ड विच दाउ लेटेस्ट डाउन। अयूब की किताब 41 वचन का पहला वचन, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है लेवायथन। हिंदी में बताएं आप क्या लिखा, लिख के भेजिए हिंदी में क्या लिखा है। मैं पंजाबी में देखता हूँ। अयूब 41, हालेलुया। अयूब 41 निकालिए। हाँ, कुलदीप शाहकोट भाई ने लिख के भेजा है, मगरमच्छ लिखा है, लेकिन आप पढ़ें 41 पंजाबी में भी लिखा है कि तू मगरमच्छ नू कुंडी नाल बाहर खिंच सकता है, लेकिन ये मगरमच्छ नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि इसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन के लिए स्कॉलर्स को कोई वर्ड ही नहीं मिला। ये ओरिजिनल वर्ड है लेवायथान। अयूब 41 का 1, अयूब 3 का 8, ज़बूर, हाँ लेवायथान आ गया, अयूब 3 का 8, ज़बूर 34, ज़बूर 74, ज़बूर साम 74 वर्सेस 12 to 15 लिख दीजिए, ये भी आयते हैं। ज़बूर 74 और उसकी 14 से 15 प्लीज़ बीच में टाइप करते जाइए। और ज़बूर 104 का 25 से 27 ये है लेवायथान। हालेलुया, लिख लीजिए इन आयतों को। अयूब 3 का 8 है, साम 74 वर्सेस 12 to 15, साम 104 वर्सेस 25 to 17। हालेलुया। एंड आई वॉन्ट यू टू रीड अनदर स्क्रिप्चर। टर्न टू जोब 40 एंड वर्स नंबर 15।
जोब 40 एंड रीड वर्स नंबर 15। अयूब की किताब 40 अध्याय और 15 वचन पढ़ें। अयूब 40 का 15 पढ़िए। पंजाबी में लिखा दरियाई घोड़ा। जरा दरियाई घोड़े नूं वेख, जिन्हों मैं तेरे नाल बनाया है वो बल्द वांगू घाह खांदा है। लेकिन ये वर्ड है बिहीमौत। क्या वर्ड है? बिहीमौत। जोब 40:15 ये वर्ड है बिहीमौत। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 2 के अंदर जाते हैं, हालेलुया, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी वर्स नंबर 2 में जब हम जाते हैं दूसरी आयत के अंदर, तो मैं फिर से आपके लिए वो टेक्स्ट पढ़ता हूँ। हालेलुया। मैं आपको शाम को ये पूरा हिब्रू में दूंगा एक बार फिर। जेनेसिस 1 वर्स नंबर 2 फिर से सुनिए। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 2, एंड द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड। दिस इज टूहू वहू। ये भी डेमोनिक एंटिटीज़ हैं। ये डेमोनिक एंटिटीज़ हैं जो कैओस क्रिएट करते हैं। कैओस बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर डिसऑर्डर का परमेश्वर नहीं है। पढ़ते हैं आप कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखता है गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कन्फ्यूजन। पॉल इज टॉकिंग अबाउट द सेम डीमन एंटिटीज जो कन्फ्यूजन लेके आते हैं क्रिएशन में। ये सबसे पहला रिबेलियन है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 2 में, जब वो फरिश्ते गिराए गए। उन्होंने कैओटिक कर दिया दुनिया को। यहाँ पे लिखा विदाउट फॉर्म टूहू वहू, और फिर लिखा होसेक, ये एक डीमन है होसेक, और फिर लिखा वॉज अपॉन द फेस ऑफ द डीप। फेस पनेम वर्ड है और डीप के लिए वर्ड है टाहोम। ये सुमेरी लोगों का देवता है टियामाट, प्राइमोडियल गॉड ऑफ कैओस। ही इज प्राइमोडियल गॉड ऑफ कैओस। ये 7 हेडेड ड्रैगन है, 7 सिर वाला सांप है जो समुद्र में से निकलता है। हमारे देश के पैंथियन में भी है ये 7 सिर वाला सांप, और समुद्र के अंदर कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये सारे पैंथियन, ये कसदियों के हों, सुमेरियों के हों, यूनानियों के हों, रोमियों के हों, या आपके मिस्रियों के हों, मेसोपोटेमियन के हों, कसदियों के हों, या जाइडोनियन के हों, गिरगिशाइटों के हों, कनानियों के हों, ये सारे वही फॉलन एंजल हैं। समझ रहे हैं आप? ये डेमोनिक एंटिटीज़ हैं। चैप्टर वो नंबर 1 जेनेसिस 1 की 2 आयत के अंदर टूहू बहू, फिर होसेक, फिर उसके बाद कौन है? टियामाट, टाहोम, 7 हेडेड डीमन दैट रूल्स द वाटर्स। और इसके साथ बहुत सी मरीन स्पिरिट्स हैं, और ये जो नाम है लेवायाथन और ये सब इन्हीं के नाम हैं। आपको मालूम कैनानाइट लोगों का सी गॉड है याम, और हिब्रू में समुंदर को याम कहा जाता है। हालेलुया। टियामाट सुमेरियन का, यामा कैनानाइट का। और आपको मालूम यहां पे लिखा है यहां पे लिखा है द स्पिरिट ऑफ गॉड। कौन आ गया अब इनके ऊपर? अब रूहा का कदुश। ये कैओस क्रिएट की हुई एंटिटीज हैं मरीन वर्ल्ड की, लेकिन इनके ऊपर खुदा का रूह आ गया, इनको दबा दिया उसने आके। हालेलुया। मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वाटर्स। 2 फेसेस हैं यहां पे, अगर आप पढ़ेंगे जेनेसिस 1 वर्स नंबर 2, अपॉन द फेस ऑफ द डीप टाहोम, टियामाट जो देवता है, और अपॉन द फेस ऑफ द वाटर्स। हालेलुया। और अगर आपको मालूम, जब आप पढ़ते हैं, हम ज़बूरों में पढ़ते हैं और एक्सोडस में पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने लाल समुद्र को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जब यहोवा परमेश्वर ने लाल समुद्र को डिवाइड किया, इट्स एक्चुअली द वर्ड मीन्स स्प्लिटिंग। ऐसे स्प्लिट कर दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं, जो हम पढ़ रहे थे
रेवलेशन चैप्टर नंबर 6 में। रेवलेशन चैप्टर नंबर 6 में हम ये पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का वो पर्सपेक्टिव है कि जब 6th सील खुलती है तब रैप्चर हो जाता है, और वो जो अर्थक्वेक है उसको वो कनेक्ट करते हैं रेजरेक्शन से। हालांकि बहुत सी जगह जब अर्थक्वेक आया रूहें जागी, लोग जलाली देह में जी उठे, लोगों ने मुर्दे जी उठे, रेजरेक्शन हुई। और यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बातें लिखी हैं। मैं अगर शाम को और हम इसी विषय पे अध्ययन करेंगे, सो विल टॉक अबाउट इट। यहाँ पे लिखा है कि मासिव अर्थक्वेक आने से क्या होता है, पृथ्वी की क्रस्ट जो है, जो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं पृथ्वी के अंदर, आपको मालूम ये पृथ्वी जिस पे आप जी रहे हो कितनी यूनिक है। जितने सौर मंडल को वैज्ञानिकों ने जान लिया है, प्लैनेट्स को, वैज्ञानिकों को पता है कि वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। आपको मालूम, मोटे तौर पे वैज्ञानिक कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि उन प्लैनेट पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जिसके अंदर यहोवा ने टेक्टोनिक प्लेट्स बनाई हैं। ये यूं प्लेट्स ऊपर एक दूसरे के घूमती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जलवायु है कंडूसिव फॉर ह्यूमन लाइफ, और पानी है यहाँ पे, और ऑक्सीजन की उतनी ही क्वांटिटी है जितनी जीवन के लिए चाहिए। बाकी प्लेनेट के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं हैं। तो जब ये अर्थक्वेक आता है, पृथ्वी की क्रस्ट जो है ऐसे रप्चर होती है, उसके होने से मासिव सुनामीज आती हैं, और पृथ्वी अपने एक्सेस पे टिल्ट होती है, घूमती है, और घूमने से ऐसे लगता है जैसे आकाश यूं घूम रहा है, और आकाश के तारे ऐसे गिर रहे हैं जैसे वचन में लिखा है फिग्स नीचे गिरते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट की, क्रिश्चियन जियोलॉजिस्ट की रिसर्च है जो ये बताता है कि नोह के फ्लड के समय जो सुनामीज आई और अर्थक्वेक आए, जिनकी वजह से पृथ्वी के एक्सेस 29.5 डिग्री पे टिल्ट हुए हैं, और वो खुदा का सॉवरेन हैंड था टिल्ट करने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से पृथ्वी पे वेदर्स हैं, अलग अलग तरह के वेदर्स हैं। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, स्पिरिचुअल और कॉस्मिक वॉरफेयर है। हालेलुया। यहोवा खुद लड़ता आके, किससे? बेलहमान से, स्टॉर्म गॉड से, और उसी के हथियार से यहोवा उसे मारता है। ये बैटल्स हैं, इसके अंदर पढ़ें, ओरिजिनल टेक्स्ट में जाएंगे। जब आपको मालूम, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसका ओरिजिन पृथ्वी नहीं है। दिस इज एन इंटीग्रेटेड मैसेज दैट हैज़ कम टू अस फ्रॉम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये जो पुस्तक है मल्टी डिमेंशनल और ट्रांस डिमेंशनल है, इसलिए बहुत सारे लोगों को जो थर्ड डिमेंशन में रहते हैं ये समझ नहीं आती। ये ये जिंदा किताब है। वचन में लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल लिविंग, क्विक पावरफुल लिविंग एंड शार्पर देन एनी डबल एजेड सोर्ड। ये जिंदा है कलाम। हालेलुया। जब ये कलाम आए किसी खुदा के सच्चे दास के द्वारा, तो इसे हमारे अंदर लाइफ इम्पार्ट करना है। ये रिलीजियस डिस्कोर्स नहीं है, ये डॉक्ट्रिन्स नहीं है ह्यूमन की बनाई हुई, ये कोई प्रवचन नहीं है। जब भी ये कलाम आएगा, यीशु मसीह कहते हैं जो शब्द मैं तुमसे बोलता हूँ वो आत्मा और जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 63 वर्स में ये लाइफ इम्पार्ट करता है, लाइट इम्पार्ट करता है, इल्यूमिनेशन करता है, ये कलाम हीलिंग करता है, छुटकारा करता है, डिलीवरेंस करता है, आपको अंदर से खोल देता है। ये है इस कलाम की कुदरत। हालेलुया, हालेलुया। छठी सील को बहुत सारे लोग रेजरेक्शन मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जेनेसिस चैप्टर 3 के बाद, खत्म होने के बाद, चैप्टर 4 की वर्स नंबर 1 में कुछ होता है जो ग्रीक टेक्स्ट भी सजेस्ट करता है। एक इवेंट कलीसिया उठा ली जाती है। हालेलुया। और आप अगर चौथा पांचवा अध्याय देखेंगे तो वो जो क्षमादान ज़मीन पे थे वो स्वर्ग में है, पिता के हजूर में। हालेलुया। तो ये वॉरफेयर हैं कलाम के अंदर। आपको मालूम, मैं स्टडी कर रहा था सॉडम एंड गमोरा की। सॉडम एंड गमोरा को आज टेल अल हमान बोलते हैं, टेल अल हमान।
ये जो सिटी थी शैतानी सिटी थी, इसके अंदर बहुत मासिव टेम्पल था और पूरी की पूरी सिटी ईस्ट को फेस कर रही थी। जिधर से सूरज चढ़ता है उस डायरेक्शन में सब लोगों के घर थे। अब इसके रूइंस मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट इसके रूइंस ढूंढ रहे हैं जाके, और वो लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे ब्रिमस्टोन और फायर तो गिरे, वो तो उनको मिल रहे हैं, सारे अवशेष उसको मिल रहे हैं, लोगों के फॉसिल हैं उसके अंदर ही, क्या कहते हैं, गंधक के अंदर मिक्स्ड लोगों के फॉसिल्स मिल रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें क्ले के ऊपर, उनकी पेंटिंग्स, चीज़ें कई रिट्रीव कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट और उनके कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, जिससे उन्हें पता लग रहा है कि ये कितना डेमोनिक कल्चर था। इसमें बच्चों को, छोटे बच्चों को अबॉर्ट किया जाता था और देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था। लोग उनका ब्लड पीते थे और ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे और देवताओं के आगे अपने वस्त्र उतार के डांस करते थे और ऑर्जीज करते थे, सेक्सुअल ऑर्जीज, और हर तरह की बदकारी थी गंदे काम थे। और मैं पढ़ रहा था एक आर्कियोलॉजिस्ट की बुक जो बता रहा है कि वहाँ की जो बिल्डिंग थी टेम्पल की और जो उसकी फाउंडेशन मिली हैं, वो सारी की सारी टिल्ट हुई हैं। परमेश्वर ने जब गंधक भेजी, आग भेजी, उसके साथ एक मासिव अर्थक्वेक भी आया नीचे। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, उसके रेलिक मिलेंगे जो लिपटे हुए हैं गंधक के अंदर, दे ऑल पेरिश्ड, क्योंकि एक शैतानी हब थी ये साडम एंड गमोरा। साडम एंड गमोरा में फिर किसी समय मैं आपको बताऊंगा, इज़िकियल और जरमाया लिखते हैं कि एक वैली है, वैली ऑफ ट्रैवलर्स, जहाँ से वो सब बदरूएँ ट्रैवल करती हैं, शैतानी आत्माएं अंडरवर्ल्ड की ट्रैवल करती हैं, और ये पूरी की पूरी वैली जो है अर्मगेडन का हिस्सा बनेगी। हालेलुया, अर्मगेडन का हिस्सा बनेगी। पूरी दुनिया की फौजें इकट्ठी होकर आएंगी इस तराई के अंदर, ये शैतानी जगह है, और मसीह के खिलाफ लड़ेगी। फौजें आएंगी, पूरे विश्व से तैयारी करेंगी। प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने मुंह की तलवार से सबको भस्म कर देगा। लड़ाई शुरू भी नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। दे आर नो मैच फॉर द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। तो वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2 के अंदर ही इतनी गहराई छिपी हुई है। ये डेमोनिक पैंथियन है, शैतानी ताकतें हैं, अंधकार की कुव्वतें, पढ़िए इस कलाम के अंदर। और ये मसीह लोगों को रोकना चाहती हैं, और जब मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते, पवित्र और धर्मी जीवन नहीं जीते, तो ये चीज़ें प्रबल हो जाती हैं। आपको मालूम शैतान को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? शैतान को ऊर्जा मिलती है इनिक्विटी से। इनिक्विटी शैतान का पावर हाउस है। जब इनिक्विटी, पाप, बदकारी बढ़ती है, गंदे काम बढ़ते हैं, शैतान को एनर्जी मिलती है, उसकी बैटरीज चार्ज होती हैं। जब परमेश्वर के लोग पवित्र धर्मी जीवन, प्योरिटी का जीवन, परमेश्वर की ज्योति में जीवन जीते हैं और परमेश्वर के कलाम के अंदर गुंधे रहते हैं, शैतानी कुव्वतें हारती हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ी वॉरफेयर है। बाइबल पढ़ के देखें आप, छोटी बात नहीं है ये। गहराई में जाएं कलाम की। आपकी लिनेज के खिलाफ वॉर है, आपके डीएनए के खिलाफ। Satan waged the war. He is a prowling lion. He seeks whom he may devour. He roams around. He identifies people. And his intent is to devour. लोगों को खा जाना शैतान का मकसद है। इसलिए वचन में लिखा, हम शैतान के डिवाइसेस से अनजान नहीं हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम को गहराई में समझें। और वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार ले लो। आपको परमेश्वर के हथियार लेने हैं सारे, थोड़े नहीं। उद्धार का टोप इधर पहन लेना है, ताकि यहाँ पे इधर ख्याल आते हैं ना, गंदे बुरे ख्याल, मसला हल हो जाएगा जब उद्धार का टोप पहनोगे। उसके नीचे आपने एक्टिवेट करना माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह के मन को एक्टिवेट करना। फिर इधर लेनी है धार्मिकता की झिलम,
ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। आपको मालूम की चीज है राइचियसनेस? राइचियसनेस मीन्स राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। राइचियसनेस मीन्स दैट यू लिव अ लाइफ दैट यू आर नाउ पोजिशन्ड through the atoning work of Jesus Christ before God, where you have a relationship with God and it is in the light. You have obtained peace with God and God is delighted with you. And constantly God looks at you and smiles. ऐसा एक रिलेशनशिप आपका मेंटेन हुआ है और ये यीशु मसीह के सलीबी काम के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता की झिलम हमें दे दी पहनने के लिए। और फिर वचन में लिखा है, गर्ड योर लॉइन्स विद द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। सत्य का कमर कसा लेना है। ये आपकी कमर कसनी चाहिए सत्य से। ट्रूथ, इम्यूना, इसके साथ आपकी कमर बंधी होनी चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु ने कहा समय आता है, बल्कि आ गया है सामरी स्त्री से, जब पिता के आराधक आत्मा में और सच्चाई में पिता की आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई में। क्यों कहा प्रभु ने ये दो बातें? आपको मालूम, जब मूसा प्रभु के पास गया, प्रभु ने 2 तख्तियां दी अपनी उंगली से लिख के। सैफायर की थी वो, कि हीरे से भी कीमती पत्थर था वो, जिसकी टेम्पलेट बनाई यहोवा ने, खुद अपनी उंगली से लिख के दिए 10 नियम। अगर आप देखिए ध्यान से, परमेश्वर के जो 10 नियम हैं इतनी जगह में आ जाते हैं अगर उन्हें आपने लिखना हो तो। यहोवा परमेश्वर ने एक ही तख्ती पे क्यों नहीं लिख के दे दिए? 2 पे क्यों लिखे? अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तख्ती ये सिखाती है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे हो, क्या नियम हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं परमेश्वर के संग रिश्ता रखने के लिए। दूसरी तख्ती ये बताती है कि हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसा हो। पहली तख्ती के अंदर जो पहले 4 नियम हैं वो आपको ये सिखाते हैं हाउ यू कैन मेंटेन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद गॉड विदाउट एनी इनहिबिशन, योर राइट स्ट्रेट रिलेशनशिप विद योर क्रिएटर। फर्स्ट 4 वर्सेस। और उसके बाद आपको मालूम कौन सी आता है? ऑनर दाई फादर एंड मदर। परमेश्वर ने ऑनर दाई फादर एंड मदर को अपने संग रखा है। ये पहली मान लो तख्ती है और ये मान लीजिए दूसरी तख्ती है। पहली पे रखा है। बहुत सारे लोग अपने फादर मदर की सेवा नहीं करते, उन्हें ऑनर नहीं करते। पास्टरों को तो पापा डैडी कहते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। यहोवा उनके विरोध में है। मैंने अपने जीवन में देखा, ये अपने माँ बाप का सम्मान ना करने के कारण आपके जीवन पे कर्ज आता है। बहुत सारे मसीह लोग प्री मैच्योरली मरते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उनका सम्मान नहीं किया। दे डाई प्री मैच्योरली। डीमंस एक्सेस अ पर्सन हु डिसऑनर्स हिज फादर एंड मदर। बाइबल में आपको मालूम क्या लिखा प्रभु में? अगर आप अपने माँ या बाप को ऐसे भी देख रहे हो ना, विद फ्राउनिंग आईज, इवन देन गॉड इज नॉट प्लीज्ड विद यू। न्यू मेरे को परमेश्वर ने कायल किया कई साल पहले। आई डिड इट विद माई मदर। बहुत डीप बात बता रहा हूं आपको। लव देम एंड चेरिश देम एंड सर्व देम। God of heaven will see you and he will be delighted। और जो दूसरी एक टैबलेट है वो ये सिखाती है कि हमारा एक दूसरे के साथ संबंध कैसे हो। बहुत सारे मसीह लोग पता क्या कहते हैं? ओ जी बंदियां तो की लेना, साड़ी प्रभु ना गलबात है। बहुत आपकी बोगस थियोलॉजी है। प्रभु ऐसा नहीं कहता। प्रभु ने 2 तख्तियां दी हैं। प्रभु ने 40% नियम इसलिए दिए कि हम प्रभु के संग कैसे रिश्ता रखें, 60% नियम इसलिए दिए कि एक दूसरे के संग रिश्ता कैसे रखें। आपको मालूम, जब यीशु मसीह सामरी औरत को कहते हैं कि समय आ रहा है बल्कि आ गया है जब पिता के आराधक आत्मा और सच्चाई में पिता की आराधना करेंगे, तो आत्मा और सच्चाई का मतलब क्या है? परमेश्वर आत्मा है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4 अध्याय में, गॉड इज स्पिरिट। तो परमेश्वर आत्मा है
परमेश्वर के साथ हमें अपना संबंध बनाने के लिए पवित्र आत्मा ज़रूरी है। आत्मिक जीवन पाना, नया जीवन पाना ज़रूरी है। वो स्पिरिट है, स्पिरिट ही उसके साथ संपर्क करेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग आपके इर्द गिर्द जो हैं, उनके संग आपका रिलेशन कैसे बनेगा? सच्चाई के द्वारा। मेरी पत्नी के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी एक ही फाउंडेशन है, वो है सच्चाई और वफादारी। जब सच्चाई और वफादारी में ब्रीच आएगी, मेरी वाइफ के संग रिलेशन टूट जाएगा। परमेश्वर के साथ स्पिरिट से आप रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ सच्चाई से रिलेशनशिप। दैट इज वाई यू नीड बोथ। यू नीड टू वर्शिप हिम इन द स्पिरिट एंड इन द ट्रूथ। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, अगर तेरे भाई के खिलाफ तेरे दिल में कोई मसला है, तो परमेश्वर की हैकल में कुर्बानी चढ़ाने जा रहा है, तो अपनी कुर्बानी वहीं रख दे, वो पहले अपने भाई से रेकनसाइल हो। इसी बात को यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा, अपने प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे दिल, पूरी जान, पूरी आत्मा, पूरी शक्ति से प्यार कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान। ये 2 तख्तियाँ हैं, 10 नियम हैं। लोग कहते हैं ना जी वो तो ओल्ड टेस्टामेंट तक नवे च असी रह रहे हैं। बिल्कुल बकवास थियोलॉजी आपकी। 2 आज्ञाएं ही 2 तख्तियां हैं जो मूसा को लिख के दी हैं। हालेलुया। आपको मालूम, वो तो मसीह की 1050 आज्ञाएं हैं न्यू टेस्टामेंट में। आप ओल्ड टेस्टामेंट को ग्रीवियस मानते हो, न्यू टेस्टामेंट कहता है अगर एक स्त्री को तूने देखा, उसकी फिजिक को देख के लस्ट पैदा हुई, यू ऑलरेडी कमिटेड अडल्ट्री। यीशु मसीह का राज्य है राइचियसनेस, जॉय एंड पीस इन द होली गोस्ट। 14th चैप्टर ऑफ रोमन्स में पॉल कहता है राइचियसनेस, जॉय एंड पीस इन द होली गोस्ट। दैट्स परमेश्वर का राज्य है। सबसे पहली चीज है राइचियसनेस, राइट रिलेशनशिप विद गॉड, और फिर आप राइट लाइफ जी रहे हो परमेश्वर के लिए प्रतिदिन, इधर थॉट लाइफ में भी। ये लाइफ आपकी पवित्र होनी चाहिए। कॉन्स्टेंट योर थॉट्स शुड बी द वेरी थॉट्स ऑफ गॉड्स वर्ल्ड। हालेलुया। ये होनी चाहिए आपकी सोचें, ये परमेश्वर की सोचें हैं। माइंड ऑफ क्राइस्ट एक्टिवेट होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यस्सु तू प्यार का दरिया है, मेरे संग गाएं। यस्सु तू प्यार का दरिया है, और सच्चाई का रास्ता है। यस्सु तू प्यार का दरिया है, और सच्चाई का रास्ता है। तेरे लहू की ये नदिया, तेरे लहू की ये नदिया, सुबह हो शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया। मैं आप सबके लिए जिन जिन के मैं नाम देख रहा हूँ प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आज फास्टिंग का दूसरा दिन है। प्रभु, मैं पास्टर सैम के लिए जो चंडीगढ़ से प्रार्थना करता हूँ, आपकी आशीष को खोलें अपने इस दास पे। अमित सैम भाई जो दिल्ली से हैं, आपकी आशीष इन पे, इनके घराने पे हो। भाई जसल बोहेमिया के ऊपर, इनके घराने पे आपकी आशीष को खोलता हूँ। सिस्टर अंजू मसीह जो यूके से हैं, उन पे आपकी आशीष को खोलता हूँ। सिस्टर रीना कुमारी फ्रॉम हिमाचल, तेरी आशीष इनके ऊपर। और जो जतिन के लिए प्रार्थना चाहती है, उस जतिन को भी आपके आगे लाते हैं। देवेंद्र कुल्हार के पति परमजीत के लिए प्रभु आपकी चंगाई का हाथ उस बंदे पे हो, आप उसे जीवन दान दें खुदावन।
आपका खून काम करे उसके लंग्स में, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका खून काम करे, उसके डीएनए जिनोम के अंदर आपका खून काम करे खुदावन। साबी सुरजीत को मैं आपके लहू में छिपाता हूँ, उसके घराने को खुदावन। मैं सिस्टर सुनीता कौर जो यूके से हैं उन्हें आपके लहू में छिपाता हूँ, आपकी बरकत खोलता हूँ। भाई विजय कुमार जो आपके दास हैं, आपके लिए प्रभु जी वर्शिप करते हैं और कराते हैं, उनको आपके लहू को छिड़कता हूँ। JNK से भाई रथौर रणवीर को, उनके घराने को आपके आगे लाता हूँ। हरजीत सिंह के ऊपर आपकी आशीष का हाथ हो खुदावन, आपके लहू को छिड़कता हूँ। सिस्टर अनीता ठाकुर पे आपके लहू को छिड़कता हूँ खुदावन। हरजीत सिंह पे आपके लहू को छिड़कता हूँ। इमैनुअल सोहता के ऊपर आपके लहू को छिड़कता हूँ खुदावन। राज बिन पलके पे आपके लहू को छिड़कता हूँ खुदावन। मलकियत गिल भाई पे, उनके परिवार घराने पे आपके लहू को छिड़कता हूँ। अमनदीप कुमार पे आपके लहू को छिड़कता हूँ प्रभु। मैं सिस्टर रिचा मसीह पे आपका लहू छिड़कता हूँ, उनके पूरे ख़ानदान घराने पे आपके लहू को छिड़कता हूँ। हालेलुया खुदावंद। अनीता ठाकुर के ख़ानदान के लिए प्रभु जी आपकी आशीष को मैं खोलता हूँ। गुरदीप सिंह भाई पे अपनी करुणा के हाथ को बढ़ाएं खुदावंद जी। हालेलुया, आपका नाम ऊंचा हो। भाई रमन खान, इनके ख़ानदान पे आपकी आशीष हो। भाई रॉबी जॉन पे, इनके घराने पे, इनकी कलीसिया जो फिरोजपुर में उस पर आपकी आशीष हो। इनके भाई जो इटली में खुदावंद, उनके ऊपर, उनके घराने पे आपकी आशीष हो। अपनी सुरक्षा के कवच में रखें उन्हें प्रभु जी इटली में। राकेश कुमार महतपुर से प्रभु अपने दास को, इनके माता पिता को, इनके घराने को मैं आपके चरणों में लेकर आता हूँ, आपकी लहू की कुदरत को खोलता हूँ। शमौन पतरस जी के, पास्टर जी के ऊपर आपके लहू की कुदरत को खोलता हूँ कि घराने पे आपकी आशीष हो खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद। दीपू मदर भाई पे, इनकी पत्नी पे आपका लहू छिड़कता हूँ, विश्वास से आपका खून छिड़कता हूँ। परवीन मसीह के ऊपर आपके लहू को मैं छिड़कता हूँ खुदावंद। मैं सिस्टर सोनिया नार को आपके लहू में छिपाता हूँ, इनके परिवार घराने को आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे लाता हूँ। प्रभु पास्टर चरणजीत को खुदावंद जो कलानौर से हैं, अपनी करुणा के हाथ को बढ़ा के अपने दास के ऊपर रखें। हालेलुया प्रभु जी। मैं रतन जी के लिए जो दिल्ली से हैं, एम्स में, खुदावंद उनके ऊपर आपके लहू की कुदरत हो, आपकी आशीष हो खुदावंद। ब्रदर संदीप, पास्टर संदीप के ऊपर आपकी आशीष को खोलता हूँ। इनके पिताजी के लिए मैं खास प्रार्थना करता हूँ, मिस्टर सैमुअल। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा के मिस्टर सैमुअल को छुएं, उनके लंग्स को अपने खून में छिपा के रखें खुदावंद। प्रभु लंबी उम्र दें खुदावंद, और अपनी सेवा के लिए मिस्टर सैमुअल को इस्तेमाल करें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद। हालेलुया। सुनीता गुड़िया कंसवर के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इसके पूरे घराने के लिए, आपकी बेटी, इसके घराने को अपने लहू में छिपाएं, आशीषित करें खुदावंद। इन्होंने भी उपवास रखें खुदावंद, आपकी आशीष का हाथ तेरी इस बेटी के ऊपर, इसके परिवार पे हो। लॉर्ड आई ब्लेस डेजी VS, मे योर हैंड बी अपॉन डेजी VS, ब्लेस हर लॉर्ड। हालेलुया। आई प्रे फॉर सिस्टर कोमल मसीह फ्रॉम दिल्ली। आई cover her son Isaiah under the blood of Jesus and her husband Simon under the blood of Jesus. Speak health, healing खुदावंद तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ। भाई दर्शन सिंह के लिए जलंधर से मैं आपका लहू उनके ऊपर छिड़क देता हूँ। यीशु मसीह उनके घराने पे, उनके बच्चों पे आपका खून छिड़कता हूँ खुदावंद। प्रभु आपकी आत्मा का काम हो खुदावंद इनके जीवन में। प्रभु मैं भाई इमैनुअल सोहता की मदर इन लॉ को भी आपकी करुणा की वेदी के आगे लाता हूँ, अपना हाथ बढ़ा के उसे छुएं। अनीता ठाकुर की आंखों को छुएं खुदावंद। सुखविंदर सुक्खा के लिए, के घराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद। हालेलुया। तनुजा सेठ के परिवार के लिए जो शिमला से हैं, आपके लहू में मैं उन्हें छिपाता हूँ। परवीन मसीह को के लहू में छिपाता हूँ। हरपाल सिंह बाजवा प्रभु आपका दास है, उसके पूरे घराने को, बीवी बच्चों को, सबको आपके खून में मैं छिपा देता हूँ। प्रभु आपके दास पास्टर सतपाल के लिए, उनके बच्चों के लिए, घराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी आशीष इनके ऊपर हो खुदावंद। हालेलुया का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। और भी जिनकी प्रार्थना विनती हैं जो मैं बोल नहीं पाया खुदावंद, आप उन्हें जानते हो। मैं आपके लहू के साए के नीचे सबको छिपाता हूँ। प्रभु भरत भूषण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु भाई भरत भूषण के घराने को अपने लहू में छिपाएं। Lord, I pray that you would charge your angels even now as I intercede. May the angels surround this family wherever they are, Lord. Each and every person of their family. Father, may they experience the guardian angels of God in the mighty name of Jesus. Father, I move in the realm of the Spirit and draw the hedge of the blood of Jesus all around them. Bless them, Lord Jesus. Unravel your glory to them. Show them your splendor and your majesty. Show them the radiance of your face. Hallelujah. Lord, I thank you. I bless you, Lord.
Once again, Lord, I pray that all these petitions will reach your throne of grace. एक एक प्रार्थना तेरे अनुग्रह के सिंहासन के आगे पहुँचे। तेरी कृपा हो प्रभु एक एक के ऊपर। इन उपवासों में प्रभु हमें प्रार्थना के लिए अपने चरणों में रखिए। प्रभु अनीता ठाकुर के बेटे आदित्य को आपके लहू में छिपाता हूँ। आई बाइंड एवरी डिसोबीडियंस इन हिम एंड आई रिलीज योर स्पिरिट्स अनॉइंटिंग। भाई अमनदीप के ऊपर आपकी आशीष को खोलता हूँ। तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। इनके घरानों के लिए, परिवारों के लिए, जो उनके सदस्य हैं परिवार के, अभी तेरे चरणों में नहीं आए, उनके लिए भी प्रभु मैं आपकी आशीष को खोलता हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। सभी धन्यवाद करें प्रभु का। धन्यवाद हो लॉर्ड। वी थैंक यू, वी ब्लेस यू, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ऑनर लॉर्ड जीसस ऑफ नाज़रेथ। तेरा नाम ऊंचा हो यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। आज सेकंड डे है फास्टिंग का, कल भी फास्टिंग होगी और आज भी शाम को प्रभु भोज करेंगे। 6 o'clock फिर हम मिलेंगे, वचन मनन करेंगे और उसके बाद प्रभु भोज लेंगे। आप में से जो प्रभु भोज लेना चाहते हैं ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आफ्टर 7 वी विल हैव होली कम्युनियन। हालेलुया। रजनी बस्ती के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आ रही है। सिस्टर रुईशा मसीह के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनके पति के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रदर सचिन वर्मा के लिए प्रभु, उनके भाई शशि वर्मा को भी आपके लहू में छिपाते हैं। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। आइए मिलके गाएं, सब गाएं मेरे साथ। तू सुंदर है, गाइए। तू सुंदर है, तू सुंदर है, यस्सु सुंदर है। तू मीठा है, तू मीठा है, तू मीठा है, यस्सु मीठा है। देखिए बिना साज के हम गाते हैं प्रभु के लिए। धरती और अंबर शाहकार तेरे, धरती और अंबर शाहकार तेरे। हम भी तो हैं दिलदार तेरे। तू मीठा है, तू मीठा है, तू मीठा है, यस्सु मीठा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। चाहे किसी की, गाइए, ना वो हलाकत तौबा की नौबत तक लाता। चाहे किसी की ना हो हलाकत तौबा की नौबत तक लाता। चाहे किसी की ना हो हलाकत तौबा की नौबत तक लाता। जो ईमान यस्सु पर लाता, अबदी जीवन मुफ्त में पाता। जो ईमान यस्सु पर लाता, अबदी जीवन मुफ्त में पाता। जो ईमान यस्सु पर लाता, अबदी जीवन मुफ्त में पाता। मेरी जान का लंगर है, लंगर है। मेरी जान का लंगर है, लंगर है। बदलता सबकी सीरत है, सीरत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। गाइए सभी। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। लहू में उसके कुदरत है, कुदरत है। कैसी उसकी हशमत है, हशमत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। सुंदर 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 यीशु है। सुंदर 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 यीशु है। हालेलुया।
6 बजे शाम को मिलेंगे। प्रभु भोज की भी तैयारी रखिए, छोटी रोटी बना के और दाखरस को ब्लेंड कर लीजिए, तैयार रखिए। शाम को मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू में आपको संभाल के रखे। सबको जय मसीह की।